आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे। और इससे पहले कि मैं आपके साथ आज वचन को बांटूं, Before I start share the message with you today, मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूं, आप लोगों की प्रार्थनाओं के लिए, वर्कर्स मीटिंग के लिए। I want to thank all of you for all your prayers for workers meeting. आपको मैं भाई से कल एक बात कह रहा था, मुझे जहां तक लगता है कि जितनी भी वर्कर्स मीटिंग हमने वहां पर की है या जो अब तक की है, मेरे लिए ये वाली वर्कर्स मीटिंग सबसे बेस्ट वर्कर्स मीटिंग थी। I was telling this to brother that I felt it this way that till date all the workers meeting that we had, this one was the most blessed one for me. क्योंकि मैंने इतना अद्भुत वचन बहुत रेयर सुनने को मिलता है, Because it's very rare that you get to listen to such a beautiful word जहां पर बिल्कुल पवित्र आत्मा का छाया नजर आता है। where you can completely feel the presence of the Holy Spirit. हाँ, वो वचन बिल्कुल हथौड़े की तरह लग रहा था, That message was hitting like a hammer. लेकिन वो हम प्रभु के दासों के लिए बहुत जरूरी है, But that is very important for us, the servants of God. क्योंकि जिन मंडियों में हम सेवा करते हैं ताकि वहां पर जाके हम उनको बता सकें। So that like in all those assemblies that we minister, we can tell the same to those people. और प्रभु ने हमारे सामने एक आयत रखी एजिकियल से And the Lord put a verse in front of us from Ezekiel कि प्रभु तुम्हें इसीलिए यहाँ पर लेकर आया है that the Lord has brought you for this purpose only, कि ताकि तुम ये बात जाकर औरों को बता सके, so that you may go to others and tell them the same. और उसी लिए प्रभु हमें वहां पर लेकर आया था, And that is why the Lord had brought us to that place. और इसीलिए प्रभु ने इतने कड़े रीति से हमसे बात भी की। And for this reason, the Lord spoke us to us very rigidly. अलग अलग तरह से हम बहुत कमजोरियों के साथ गए थे, And we went there with lot of shortcomings. बहुत तैयारी भी पूरी तरह से नहीं थी, We were not even prepared completely. भाई बहुत घबराए हुए थे, Brother was very worried. और जो हमने पूरा जो प्रोग्राम का सीक्वेंस बनाया था वो सब अस्त व्यस्त हो गया। And the complete itinerary that we had for the program, it was all jumbled up. जिस डायरी में वेस्ली भाई ने मैसेज लिखा था, भाई उस डायरी को यही भूल गए, And the diary in which Brother Wesley had written his message, he forgot it at home. और वहां पर मैसेज की सारी सीक्वेंस बदल गई। And the entire sequence of all the messages was turned हमें upside down. ऑनलाइन कनेक्टिविटी ठीक नहीं मिल रही थी, We couldn't get a proper connectivity for online meeting. और हमने सच में प्रभु के बड़े सामर्थ्य हाथ को देखा। And we truly saw the very powerful hand of God. शुरू में तो मुझे लगा कि हम शायद एक थोड़े समय की मीटिंग करके हमें लौटना पड़ेगा, हम कर ही नहीं पाएंगे। Like initially I thought that we'll have to have a small meeting and then we have to return. लेकिन उसके थोड़ी देर बाद प्रभु ने हमारे लिए स्वर्ग खोलना शुरू कर दिया। But after a little while, the Lord had started opening heaven for us. और प्रभु उस हाल सिचुएशन में भी हम लगभग 50 लोग वहां पर इकट्ठे हुए, And even in that situation, by God's grace, about around 50 people have gathered. और वहां अद्भुत रीति से प्रभु ने काम किया। प्रभु ने मैसेजेस को बिल्कुल सही सीक्वेंस में ले आया, And the Lord worked wonderfully, and He got all the messages in a right sequence. जो बिल्कुल जो पहला संदेश होना चाहिए था, हमारे भाई फिलिप ने पहला संदेश दिया, वो पहला संदेश नहीं था, लेकिन प्रभु ने ऐसा सीक्वेंस बदला, भाई फिलिप ने पहला संदेश दिया। Brother Philip gave the first message. It was not supposed to be the first message, but the Lord put it in a sequence that He gave the first message. और वो था, तुम अपने कानों को खोलो, And the message was that you open your ears, जिसके कान है वो सुन ले, and whoever has ears, let them hear. और उसके बाद प्रभु ने जब हमारे कान खोल दिए, तब प्रभु ने उन कान में अपना वचन डालना शुरू किया। And when the Lord opened our ears, He started pouring His word into our ears. तो प्रभु ने बड़ा अद्भुत काम किया। The Lord has done a great work. प्रभु ने नेहमाया के जीवन से अद्भुत रीति से बात की। The Lord spoke to us wonderfully through the life of Nehemiah. और प्रभु ने हमें बताया कि सफलता सेवकाई में वास्तविक प्रभु की सफलता क्या होती है। And the Lord spoke to us what is the success in the ministry.
सेवकाई में सफलता सिर्फ विश्वास योग्यता ही सफलता है। Faithfulness is the only success in ministry. और प्रभु ने हमें बताया कि हमें कैसे आत्माओं के लिए रोज किसी ना किसी को सुसमाचार देना है। And the Lord taught us how we should at least give gospel to at least one person. पौलुस कहता है हाय मुझ पर अगर मैं सुसमाचार ना सुनाऊं। Paul says, woe unto me if I don't preach gospel. अलग अलग तरह से प्रभु ने बात की। The Lord spoke to us in many different ways. तो उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं जिन्होंने सच में हमारे लिए प्रार्थना की। And for all that, we thank all of you who have truly prayed for us. और एक जब हम इस वचन में जाएंगे, आप हमारी बहन कस्तूरी के लिए प्रार्थना कीजिएगा। हमारी बहन को डेंगू है, अभी वो हॉस्पिटल में है। As we go into the message, let's pray for our sister Kasturi, who's infected with dengue and she is in hospital. और आइए इस वचन के लिए भी प्रार्थना करेंगे। And come, let us pray for this message. उससे पहले मेरे पास कुछ विशेष नहीं है आपको देने को। And before that, I don't have anything special to share today. एक जाना माना हिस्सा पढ़ेंगे, उत्पत्ति उसका 14 अध्याय 18 से लेकर और उसकी माफ कीजिएगा 24 आयत तक। 18 से 24 जल्दी से पढ़ दीजिए। We'll read from a very well-known passage from Genesis chapter 14, 18 to 24. तब शालेम का राजा मलिकसेदेक जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया और इसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। तब सदोम के राजा ने अब्राहम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख। अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं ये शपथ खाता हूं कि जो कुछ तेरा है उसमें से उससे ना तो मैं एक सूत और ना जूती का बंधन ना कोई और वस्तु लूंगा कि तू ऐसा ना कहने पाए कि अब्राहम मेरे कारण धनी हुआ। पर जो कुछ इन जवानों ने खा लिया है और उनका भाग जो मेरे साथ गए थे, अर्थात अब्नेर, एशकोल और ममरे, मैं नहीं लौटाऊंगा, वे अपना अपना भाग रख लें। आइए प्रार्थना। Shall I? हाँ भाई, अभी हिंदी नहीं पढ़, आइए प्रार्थना करें। प्रभु हम एक बार फिर आपके लोगों के द्वारा आपके सामने आते हैं कि प्रभु आप जानते हैं कि मेरी बहुत लिमिटेड तैयारी है। आप जानते हैं कि मेरे पास कोई नया विचार आपके लोगों को देने के लिए नहीं है। आप जानते हैं कि ना ही मैं कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा हूं प्रभु, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरा प्रभु बहुत सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मैं अपने होठों को तेरे हाथ में देता हूं, अपने शरीर को तेरे हाथ में देता हूं। सबसे पहले मेरे अंदर कोई गंदगी, कोई घमंड, कोई ईर्ष्या, कोई लालच, कोई गंदा विचार, मुझे अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर और तेरी प्रतिज्ञा निर्गमन 4:12 यिर्मयाह 1:9 को मेरे लिए पूरा कर। हे मेरे प्रभु, आज तो काम कर और अपने लोगों से बात कर। पवित्र आत्मा एक वास्तविक रूप से आप अपने लोगों से बात करें, बड़ी सफाई से बात कर, मुझ पर दया कर, इन थोड़े से साधारण से विचारों से अपने लोगों से बात कर। हमारे भाई आइजक को ट्रांसलेशन करने में प्रभु आप एक मन दे मेरे साथ, और हमारी बहन कस्तूरी को छूकर पूरी चंगाई दे। वर्कर्स मीटिंग के लिए एक बार फिर सारी आदर, महिमा, गौरव हम आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक और बात हमने बहुत अद्भुत कल सुनी, and we have heard one more amazing thing yesterday, कि जब दाऊद ने गोलायत को मारा, when David defeated Goliath, तो उसने वो वहां पर अंग्रेजी में नाला लिखा है, वो नाला नहीं है, वो सही शब्द है स्रोता यानी स्ट्रीम। वहां से उसने 5 स्मूथ एकदम चिकने पत्थर लिए, स्मूथ पत्थर लिए। and it is written, and we see that he had collected five very smooth stones from a stream. हाँ, उसमें क्योंकि बहता हुआ फ्रेश पानी होता है, उस पानी ने इतने समय के साथ साथ उस पत्थरों के जो तीखे कोने थे वो सारे मिटाकर उनको बिल्कुल स्मूथ कर दिया था। And those stones have been in that stream for such a long time that all the rough edges were smoothened. उस बहते हुए जीवन के पानी ने उन जीवते पत्थरों के सारे शार्प कॉर्नर, सारे तीखे कोने हटा दिए और उनको बिल्कुल स्मूथ बना दिया। That living stream of water had removed all the sharp edges from those stones and made them very smooth.
और उन पत्थरों से डेविड ने विजय पाई। And David got the victory through those stones. उसी तरह प्रभु मेरे और आपके जीवन से अपने मेरे और आपके जीवन में वचन के झरने के वचन के जीवन के पानी के द्वारा हम जीवित पत्थरों के शार्प कॉर्नर्स को हटाकर हमें स्मूथ बनाता है। And in the same way, the Lord through the living streams of the word will smoothen our lives and use them, कोई तीखा कोना न रह जाए, so that there may not be any sharp edge, हम किसी को दुख और चोट ना पहुंचाने वाले हो, so that we may not cause any hurt to anyone, हम मसीह की तरह दिखने लगे, and we may start to appear like Christ, उसकी तरह बोलने और सोचने लगे, and we start to speak and think like him, उसकी जैसी चाल चलने लगे, and we start to walk like him. और इसीलिए प्रभु इस मेज को भी हर इतवार को हमारे सामने लाता है। And for this reason, the Lord brings this table in front of us every प्रभु की Saturday. मेज एक बहुत बड़ा दर्शन है। The table of the Lord is a great vision, और संसार में सब विश्वासियों के पास ये दर्शन नहीं है। and not all the believers of the world have this vision. प्रभु ने 2 आज्ञाएं दी है हर विश्वासी के लिए। The Lord gave 2 commandments for all believers. एक तो बपतिस्मा जो एक बार होता है, One is baptism that happens once. ये कोई धर्म परिवर्तन नहीं है, This is not any religious conversion. वो तो हमारे जीवन के अंदर एक गवाही है कि मैं मसीह के साथ अब मर गया हूं, अब नए जीवन के साथ जी उठा हूं और नए जीवन की चाल चलूंगा। It is just an evidence that I have died with Christ and I have risen up with him, and I will start to walk in a new life. और दूसरा है प्रभु की मेज जो हम हर सप्ताह के पहले दिन उसमें हिस्सा लेते हैं। And second is the table in which we take part in every Sunday. इसमें प्रभु ने कहा तुम मुझे याद करो, And that is why the Lord said, you remember me, क्योंकि तुम भूलने वाले लोग हो, because you are forgetful people. और अगर तुम भूल जाओगे तो तुम्हारा मूर्खपन अंधियारा हो जाएगा। And if you forget me, your stupidity will cause you into darkness. और इसीलिए प्रभु में अपने बलिदान को बार-बार याद दिलाता है। And that is why the Lord reminds us of his sacrifice again and वो again. याद दिलाता है कि मैंने अपने तन मन शक्ति बुद्धि से तुझसे प्यार किया है बहन। And he reminds you that I have loved you with all my heart, body and soul. और मेरे पापों के लिए इतनी भयानक मौत को मेरे प्रभु ने सह लिया। And for my sins, my Lord has suffered such a terrible death, कि मैं और आप नरक न जाए, so that you and I may not go to hell. हम इस बात को याद करते हैं। And we remember this. ये यादगार हमारे अंदर एक एहसास को जगाती है। And this memory provokes a feeling inside us. ये मेरे प्रभु ने मेरे लिए क्या, मैं प्रभु के लिए क्या करता हूं। That my Lord has done this for me. What can I do for him? एक हम गीत गाते ना, जान मैंने अपनी दी, खून दिया, तूने मेरे लिए क्या किया। We sing that song that like, I have given my life, I have given my blood. What have you given for me? जब मैं प्रभु को याद करता हूं कि उसने मुझे अपने सारी तन मन शक्ति बुद्धि से प्यार किया, मैं अपने आप से पूछता हूं प्रभु क्या मैं तुझसे ऐसा प्यार करता हूं। When I remember myself that the Lord had loved me with all that he had, like I question myself, do I do the same for the Lord? प्रभु ने अपने हर एक शत्रु को मरते दम तक माफ कर दिया, क्या मैं अपने शत्रु को माफ करता हूं? The Lord forgive every enemy till the last breath, and do I do the same? तो हम क्या करते हैं, हम अपने आप को जांचते हैं। पौलुस कहता है मेज में हिस्सा लेने से पहले अपने आप को जांच लो। So we start examining ourselves, like Paul said, that examine yourself before you take part in the table. और जहां पर मुझे अपने जीवन में पाप गड़बड़ी नजर आए वहां पर पश्चाताप कर लो। And wherever I find myself in fault, I ask for forgiveness. पौलुस कहता है जो इसमें तुम योग्य रीति से हिस्सा लो। Paul says that take part in it in the right manner. यानी अपने आप को जांच कर पश्चाताप करके उस पाप को हटाकर फिर हिस्सा लो। That means like examine yourself, remove that sin from your life, and then take part in it. उड़ाऊ बेटे के साथ क्या हुआ? What happened with the prodigal son? पहले उसे अपने बाप का घर याद आया। First, he remembered his father's house. उसे याद आया कि मेरे बाप के घर में इतनी रोटी है कि दासों के पास भी बहुत रोटी बच जाती है। And he remembered that my father's house had so much food that even the servants had excess of bread.
तब उसे एहसास हुआ कि यार मैं तो यहाँ भूखा मर रहा हूं, And then he realized that here I am starving. और उसने पश्चाताप किया, मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा। And then he repented that I'll stand up and go to my father. तो जिनका विवेक जिंदा है उनको मेज में जांचने का और पश्चाताप करने का प्रभु हर हफ्ते मौका देता है। And so whoever have their consciousness alive, the Lord gives them an opportunity every week for them to examine and take हाँ, part in the table. जिन्होंने अपने विवेक के गले को नहीं घोटा, And whoever have not choked quenched their, the voice of their conscience, और उनसे प्रभु बात कर रहा है। and the Lord is speaking to those people. बाकियों के लिए तो मेज एक रीति बन गई है, And for others, this has become just a tradition. लेकिन जिनका नाजुक विवेक है, जिनका से प्रभु बात करता है, वो उसकी आवाज को मेज में सुनते हैं। But who still have a sensitive consciousness, to whom the Lord is still speaking, they hear the word of God. तो यहाँ पर जो हिस्सा हमने पढ़ा, ये मेज का दर्शन है। ये पहली बार बाइबल में मेल्कीसेदेक रोटी और प्याला लेके इब्राहिम के पास आया। And the portion that we have read today, this is the first vision of the table here. For the first time, Melchizedek brought bread and wine. मेल्कीसेदेक कौन था? Who was Melchizedek? मेल्कीसेदेक सेलम का राजा था। He was king of Salem. सेलम का मतलब होता है शांति, यानी वो शांति का राजा था। Salem means peace. He was king of peace. उसके बारे में लिखा है कि उसका ना तो माँ था, ना पिता था, ना आदि था, ना अंत था। About him it is written, neither did he have father, nor did he have mother, neither did he have the beginning or the end. वो अचानक बाइबल में प्रकट होता है और चला जाता है। Like he comes all he's just revealed all of a sudden, and then he leaves. और इब्रानियों में लिखा है, प्रभु ने कहा, प्रभु यीशु मसीह को प्रभु ने कहा, तू मेल्कीसेदेक की रीति के अनुसार याजक है, महायाजक है। And in Hebrews it is written that you are a priest like Melchizedek about Christ. You are a high priest after the order of Melchizedek. कई तो ये भी कहते हैं कि मेल्कीसेदेक खुद प्रभु यीशु मसीह खुद उस स्वरूप में इब्राहिम के पास आया था। Many say that the Lord Jesus Christ himself came in the form of Melchizedek to Abraham. क्योंकि इब्राहिम ने इसको दशमांश भी दिया था। Because Abraham even gave him 10%. वो एक और विषय है, that is a different thing. लेकिन यहाँ पर हमारे पास मेज का दर्शन है। But here we have the vision of the table. तो वो आया क्यों? Why did he come? इब्राहिम के सामने एक बड़ी परीक्षा आने वाली थी। There was a great test about to stumble in Abraham's way. और मेल्कीसेदेक उस परीक्षा से पहले रोटी और प्याला लेकर उसे उस परीक्षा के लिए तैयार करने आया। And Melchizedek with bread and wine came to prepare him for that trouble. मेज एक बहुत बड़ा दर्शन है। इससे ना केवल प्रभु को याद करते हैं, अपने आप को जांचते हैं और पश्चाताप करते हैं। Table is a great vision. It is not just that we examine ourselves and repent and we take part in it. लेकिन इसके साथ साथ प्रभु सप्ताह के शुरू में हमें आने वाले सप्ताह के लिए बिल्कुल नई रीति से तैयार कर देता है। But also on the first day of the week, the Lord prepares us completely new for us for the coming week. इस आने वाले सप्ताह में कई सारी परीक्षाएं मेरे और आपके लिए रखी हैं। There are many tests and troubles kept for us in the coming week. ये मेज उन परीक्षाओं के लिए भी हमें तैयार करती है। And this table prepares us for those tests as well. ये मेज एक तो हमें रिन्यू करती है, फिर से नया करती है। This table renews us. तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता चला जाए। By the renewal of your heart, your ways will be changed. और साथ साथ आने वाली परीक्षाओं के लिए तैयार करती है। And it also prepares you for the troubles to come. अब ये कहानी शुरू कैसे होती है? And how does this story start? यो उत्पत्ति 14 अध्याय में पहला बाइबल का युद्ध लिखा है। And in Genesis 14, the first war in Bible is written. 4 राजाओं ने 5 राजाओं के विरुद्ध में लड़ाई की और उन 4 ने 5 को हरा दिया। 4 kings together fought against 5 kings, and those 4 kings won against them. आप पढ़िए उत्पत्ति 14 9 से 12 पढ़ दीजिए। Let's read Genesis 14 chapter 9 to 12. सिर्फ हिंदी में पढ़िएगा। हाँ, अर्थात एलाम के राजा कदोल ओमेर, गोयीम के राजा तेदाल, शिनार के राजा अमरापेल और एलासार के राजा अरियोक, इन चारों के विरुद्ध उन 5 ने पांति बांधी।
सिदोम नामक तराई में जहां लासार मिट्टी के घड़े गढ़े थे, सदोम और अमोरा के राजा भागते भागते उनमें गिर पड़े और जो बचे वे पहाड़ पर भाग गए। अप टू वर्स भाई 12 तक। तब वे सदोम और अमोरा के सारे धन और भोजन वस्तुओं को लूट लाट कर चले गए और अब्राहम का भतीजा लूत जो सदोम में रहता था उसको भी धन समेत वे लेकर चले गए। भाई ये नहीं लिखा 4 ने 5 को हरा दिया। ये 4 अगेंस्ट 5 नवी आयत में 4 ने 4 की 5 के साथ लड़ाई। हिंदी में क्या लिखा है? नवी आयत के आगे इन चारों के विरुद्ध उन 5 ने पांति बांधी। हाँ, और उन 4 ने 5 को हरा दिया। And those 4 kings defeated those 5 kings. और सदोम का राजा भी हार गया। And the king of Sodom also was defeated. और वो सारे सदोम को लूट कर ले गए। And they all looted Sodom and left. और सदोम में लूत उसका परिवार भी रहता था, उसकी सारी चीजों को, उसके पूरे परिवार को भी वो पकड़ कर ले गए। And like Lot was also living in Sodom and all his possessions were also taken away. तो ये खबर इब्राहिम के पास पहुंची And this news reached Abraham. और इब्राहिम ने तुरंत एक्शन लिया। And Abraham took action immediately. 14वीं आयत पढ़े, 14 in 14 verse. ये सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बना लिया गया है, अब्राहम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया। और 15-16 भी पढ़ देता है, 15-16 पढ़। हाँ, और अपने दासों के अलग अलग दल बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया और होबा तक जो दमिश्क के उत्तर की ओर है उनका पीछा किया और वे सारे धन को और अपने भतीजे लूत को और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंदियों को लौटा ले आया। इब्राहिम इतना बड़ा आदमी था। Abraham was such a big man. उसके पास 318 लोगों की सेना थी। And he had 318 trained men. और मैं सोचता हूं ये केवल ऐसे सैनिक नहीं थे, मैं सोचता हूं ये कमांडोज थे। And I believe these were not just foot soldiers, but they were commandos. हाँ, क्योंकि 5 राजाओं की सेना को 318 लोगों ने हरा दिया। Because 318 people defeated enemies of 5 kings. हाँ, कमांडोज को ऐसी ट्रेनिंग की जाती है। Only commandos are trained this way. एक कमांडो कितने सारे सैनिकों पे भारी पड़ जाता है। One commando gets too much heavy on many of soldiers. हाँ, अमेरिका में उसको स्पेशल फोर्सेस कहते हैं। And in America they are called special forces. हमारे देश में NSG, SPG है। In our country we have NSG and SPG. पैरा कमांडोज हैं। There are para commandos. ये बहुत अद्भुत रीति तैयार किए जाते हैं। And they are trained very rigorously. क्योंकि यहाँ लिखा है उसने उन 318 को कई गुटों में बांट दिया और 5 राजाओं की सेना को हरा दिया। And here it is written that those 318 were divided into many divisions and they defeated 5 kings. और सारा का सारा लूट वापस ले आए। And they got back all the possessions. यहाँ पर इब्राहिम ने बुराई को भलाई से जीत लिया। Here Abraham won over evil with goodness. मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? Why am I saying this? क्योंकि लूत ने उसके साथ बहुत बुराई की थी। Because Lot had done very bad things with him. इन दोनों के बीच में हम 13वें अध्याय में पढ़ते हैं, हमारे पास समय नहीं है, आप बाद में पढ़ लीजिएगा। 13वें अध्याय में ये दोनों जब साथ साथ रहते थे तो इनके बहुत भेड़ बकरियां हो गई, तो इनके चरवाहों के बीच में वाद विवाद होने लगा। And we see in chapter 13 that when they were living together in that time, they had a lot of cattle and there were disputes between their shepherds. और वाद विवाद होने लगा तो इब्राहिम ने तो वो लोगों के बीच में जा रहे थे, वहां पर उनकी गवाही खराब होने लगी थी। गवाही खराब होने लगी थी। Because of these people having disputes, their testimony was going wrong. क्योंकि तेरा साथ में लिखा है कि कनानी और परिजी भी उसी इलाके में रहा करते थे। Because in 13:7 it is written that the Canaanites and the other Gentiles were living there. तो 8वीं आयत में लिखा है कि इब्राहिम ने लूत को कहा, देख यार हम दोनों भाई हैं, तो मैं तेरा मामा भांजा, हमारे बीच में ये, मैं तेरा चाचा हूं, हमारे बीच में ये लड़ाई नहीं होनी चाहिए। And in 8th verse Abraham said that you and I they shouldn't be quarreling between us. You and I are relatives. अगर हम सहमत नहीं हो पा रहे, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। And if we cannot cooperate with each other, let's separate. क्योंकि जब तक दो सहमत नहीं, वो एक साथ नहीं चल सकते। Because if two are not in one mind, then they can't walk together. इससे अच्छा हम अलग हो जाते हैं।
It is better that we separate. क्यों अपनी गवाही खराब करे? Why ruin our testimonies? और अगर तू दाएं जाएगा तो मैं बाएं जाऊंगा, तू जहां जाएगा मैं उल्टी दिशा में चला जाऊंगा. And if you go right, I'll go left, and whatever direction you pick, I'll go in the other direction. अब लूत को इब्राहिम ने अपने बेटी की तरह पाला था. Abraham brought up Lot as if his son. लूत इब्राहिम के भाई का बेटा था. वो भाई हरान मर चुका था. इब्राहिम लूत को अपने साथ अपने बेटे की तरह लेकर आया था. Lot was Abraham's brother's son. His brother died, and Abraham brought Lot as his son. उसकी देखभाल की, पाल पोस कर बड़ा किया, उसको सब कुछ दिया. And he looked after him and took care of him as a son. लूत उसको कह सकता था, Lot could have said to him, आप मेरे अंकल हो, "You're my uncle. जो मेरे बाप जैसे हो. You're like my father. आप मुझे जहां भेजोगे मैं वहां जाऊंगा. Wherever you send me, I'll go." मैं एक बात जानता हूं, आपने मेरे साथ कभी बुरा नहीं किया. आप मेरे लिए कभी गलत फैसला, बुरा फैसला नहीं लोगे. Like, I know this, that you have never thought of anything bad for me, and you can never think of any decision against me. आप मुझे बेटी की तरह प्यार करते हो. आप मेरा नुकसान कैसे होने दोगे? Like, you love me like your son, so how will you allow that I take any loss? आप मुझे जहां कहोगे मैं वहां चला जाऊं. Wherever you tell me to go, I'll go. आपने मुझे खड़ा किया, आप मुझे बताओ. You are the one who raised me up, and you tell me. लेकिन लूत बहुत सेल्फ सेंटर्ड आदमी था. But Lot was very self-centered. यहां पर निकल के बाहर आ गया, उसको बिल्कुल एहसान फरामोश था. And he just came out, and he was not thankful at all. ऐसे होते हैं विश्वासी. There are believers like this. इतनी भलाई उनके साथ करी. वो लोगों को, वो जब अपना इंटरेस्ट देखते हैं, वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता. Like, no matter how good you've been to them, like, if they see their interest, it doesn't matter to them. इब्राहिम यहाँ पर अड़ सकता था. Abraham could have asked here, मैं बड़ा हूं, मैं एल्डर हूं, I am the elder. मैं पहले चुनूंगा. I'll choose first. लूत कुछ नहीं कर सकता था. And Lot could not have said anything against it. अरे इब्राहिम इतना ताकतवर आदमी था. Abraham was such a powerful man. लेकिन वो ताकतवर आदमी झुक गया. But that powerful man became meek, कहीं हमारी गवाही न खराब हो जाए, so that his testimony may not be ruined. आप पढ़े याकूब 4:1. Let's read James 4:1. याकूब What 4:1. causes fights and quarrels among you? Don't they come from your desires that battle within you? तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? हाँ, इनके बीच में झगड़ा हो गया. And they had quarrel between them. अब झगड़ा या लड़ाई रोकने का क्या तरीका है? But now, what is the way to stop quarrel or fights? लड़ाई खत्म कैसे होती है? How do we finish fights? जब एक जना हार मान लेता है When one person compromises और हथियार डाल देता है. and puts down his weapon. इब्राहिम ने हार मान ली, And Abraham accepted his defeat. समझौता नहीं किया. He didn't compromise. उसने कहा चल तू जीता, तू जो चाहता तू ले ले. Like, he just said, like, yeah, I accept, you won. Like, take whatever you want. उसने बेकार में लड़ाई नहीं की. He didn't fight for no good उसने reason. अपने अधिकार के लिए लड़ाई नहीं की. He didn't fight for his authority. वो जानता था मेरे प्रभु मेरे अधिकारों की रक्षा मुझसे ज्यादा अच्छी कर सकता है. He knew that my God can protect my authority much better than I. वो मेरी कभी बुराई नहीं होने देगा. He'll never let anything bad happen to me. जो विश्वासी इस बात को जानते हैं उन्हें कभी फर्क ही नहीं पड़ता, जो लेना है ले लो यार. Like, any believer who knows this, that to them nothing matters anymore. Like, हाँ, whatever you want to do, you can. तुम जो मेरा बाप मेरा बुरा होने ही नहीं देगा. My father will not let anything bad happen to ये me. हम संसार में आज अधिकार के लिए बहुत लोग लड़ाई लड़ते हैं. Today in this world, we fight lot of fights for power and authority. हाँ, इसका अधिकार, जाति का अधिकार, स्त्रियों का अधिकार, बच्चों का अधिकार, चारों तरफ अधिकारों की लड़ाई चल रही है. Like, national rights, women's rights, children's rights. There are a lot of fights concerning these rights and authority. एक भाई कहता है कि विश्वासी के पास केवल एक अधिकार है. One brother says that a believer has only one right. हमें अधिकार दिया गया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं. We have this right that we can say that we are the children of God. विश्वासियों का अधिकार की लड़ाई लड़नी ही नहीं चाहिए.
Like a believer should not fight for any rights. आपके अधिकार की लड़ाई आपका प्रभु लड़ेगा. Like your Lord will fight for your जो cause. आपका है वो प्रभु आपको जरूर देगा. Whatever is yours, the Lord will definitely give it to you. अगर कोई तेरे से तेरा कोट मांगे तो अपना क्लोक भी दे दे, अपना अंगरखा भी दे दे. If anyone asks you for your coat, give him your cloak as well. अपनी लड़ाइयां लड़ना सीखो. Learn to fight your battles. हमारी लड़ाई मांस और लोगों के साथ नहीं है. Our battles are not against flesh and blood. हमारी लड़ाई तो आत्मिक सेनाओं से और शैतान की सेनाओं से है. Our battle is against the spirits and the spirits of the devil. मेरी लड़ाई तो मेरे शरीर के अंदर पाप से है. My battle is against the sin in my body. पौलुस कहता है कि मैं अपनी देह को मारता हूं, कूटता हूं, उसको निशान लगा देता हूं. Like Paul says that I beat up my own body. वो अपनी देह, मेरी लड़ाई मेरी अपनी देह के साथ है, क्योंकि मेरी देह मेरे वश में नहीं आती. My battle is against my body because it doesn't come under my control. मेरी लड़ाई किसी और के साथ है ही नहीं. I don't have any battle with anyone. लेकिन हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहते हैं. But we keep on fighting for our rights. पति पत्नी अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहते हैं. Wife and husband keep on fighting for their authorities. हाल में मेरे जान की पहचान में 2 बहुत ऐसे लोग, उनके परिवार टूट गए. And recently, like there are 2 people whom I have known of, their families are broken. एक मेरे बहुत करीब है, बहुत पढ़ा लिखा PhD डॉक्टर है, उसकी पत्नी PhD डॉक्टर है. दोनों इतने पढ़े लिखे हैं, कोई पैसे की कमी नहीं, लेकिन साथ नहीं रह सकते. Like one very close colleague of mine, like he's a PhD, his wife is a PhD, they don't lack anything, but they can't live together. एक और जानता हूं, इतना पढ़ा लिखा, IIT का पढ़ा हुआ, अमेरिका से PhD किया हुआ, और उसकी पत्नी अपना बच्चे को लेकर छोड़ के चली गई. And I know another person who studied in the IIT and who's done his PhD in America, and now his wife has left with the child. इतना ज्यादा आपस में ईगो है. So much of ego between the two. पति पत्नी अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहते हैं. That wife and husband keep fighting for their rights. भाई जॉर्ज मैथ्यू ने इतना सुंदर संदेश दिया था भाई फिलिप की बेटी की शादी में. Brother George Matthew gave such a beautiful message in our brother Philip's daughter's wedding. मेरे जीवन साथी के जो है वो उसके अधिकार है. Sir, मेरे जीवन साथी के तो अधिकार हैं. Like my life partner has rights. लेकिन वो जो मेरे लिए करता है या वो करती है, वो मुझ पर अनुग्रह करता है या करती है. But whatever she or he does for me, she does out of they do out of their grace. इब्राहिम जानता था लूत मतलबी है. Abraham knew that Lot was, और वो हरियाली ही चुनेगा. and he will choose greenery. लिखा है लूत ने अपनी आंखें उठाई और उसने सदोम की हरियाली को देखा और वहीं चला गया. And it is written that Lot lifted up his eyes towards the greenery of Sodom and left there. लूत ने अपनी आंखें उठाई. Lot lifted up his eyes. लेकिन प्रभु ने इब्राहिम की आंखें उठाई. उत्पत्ति 13:14 प्रभु ने इब्राहिम की आंखें उठाई. But the Lord lifted up Abraham's eyes in Genesis 13:14. Genesis 13:14. Yes भाई. तब जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंखें उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दृष्टि कर. हाँ, प्रभु ने कहा अपनी आंखें उठा. वो शायद प्रार्थना में बैठा हुआ था. Like the Lord said that, like, open your eyes and look. Probably he was in a prayer. अरे ये भूमि तो सारी तेरी है. Like, all this land is yours. सारी भूमि तुझे देता हूं. I give you all this land. हम इब्राहिम की देखते हैं कितना वो नम्र आदमी था. And we see how much of a humble person Abraham पर was. एक समस्या भी थी. But there was also a problem. इब्राहिम ने बार-बार अपने परिवार के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ा. Abraham had faced troubles again and again because of his family. और वो होता है इमोशंस, भावनाओं की वजह से. That is because of our emotions. उसको नुकसान उठाना पड़ा. He had to take up a loss. जब वो दूसरे देश में था, जब प्रभु ने उसको निकलने के लिए कहा, तो उसका पिता तेरा उसके साथ निकल आया. When he was in a foreign land and the Lord told him to leave from there, like his father came with him. आप पढ़ते उत्पत्ति 12 अध्याय, माफ कीजिएगा, उत्पत्ति 11 और 31 शुरू का हिस्सा. उत्पत्ति 11:31 शुरू का हिस्सा. Genesis 11:31.
तेरे अपने पुत्र अब्राम और अपने पुत्र लूत जो हरान का पुत्र था, हाँ, और इन सब को लेकर वो हरान में चला गया। And he took Terah took all of them and they went to Haran. अब 12:1 पढ़िए। And now read 12:1. यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। नहीं, ये हिंदी में ठीक नहीं लिखा है अंग्रेजी में, यहोवा ने इब्राहिम से कहा था। द लॉर्ड हैड सेड टू इब्राहिम, प्रभु ने पहले कहा था उसको। The Lord had said to him that go from your country, your people, your father's household. लेकिन जब वो निकलने लगा तो पता नहीं तेरा ने, एक भाई कहता तेरा बस मैं बड़ा हूं, मेरी बात सुननी चाहिए। और जब इब्राहिम अटक गया कि मैं जाना ही है, तेरा ने कहा मैं भी जाऊंगा। And like one brother said that like Terah must have said that I am the elder, I'll decide when to go. And when Abraham was stuck, he said like I'll also come. अब इब्राहिम को जाना आगे था, लेकिन तेरा ने उसको हरान में रुकवा लिया। Abraham had to go forward, but Terah made him stay here in Haran. देखिए वहां आयत में ये नहीं लिखा कि इब्राहिम लेकर निकला, लिखा है तेरा इब्राहिम और उसके सारे परिवार को लेकर निकला। And there in chapter 11, it's not written Abraham had moved, but it's written Terah took his family and moved. और वो जाके हरान में रुक गए। And they went and stayed in Haran. और इब्राहिम के कई साल बर्बाद हो गए। And many years of Abraham were ruined there. और वहां उसने अपने पिता की बात सुनकर अपने स्वर्गीय पिता की बात को टाल दिया। And there he, listening to his father's voice, he ignored his heavenly father's order. He postponed his heavenly father's voice. He postponed his heavenly father's voice. और वो साल उसके जीवन में कोई उन्नति नहीं हुई। And in those years there was no development in his life. तेरा ने उसकी आत्मिक दौड़ को रोक दिया। Terah stopped his spiritual marathon. ये सिर्फ एक भावनात्मक डिसीजन था। And this was just an emotional decision. और इससे अलग हुआ इब्राहिम जब तेरा की मौत हो गई। And he got free of it after Terah died. पर जब वो आगे निकला फिर लूत को अपने साथ लेके चल पड़ा। And when he started going forward, he took Lot with him. ये इसका अनाथ है, इसका पिता मर चुका है, मैं इसकी देखभाल करूंगा, ये भावनाओं में आ गया। And he got into emotions again that he's an orphan, I'll take care of him. उसने प्रभु से शायद कभी नहीं पूछा शायद इसके बारे में। Probably he didn't ask the Lord about this. वो उनको झगड़ा जो हुआ वो झगड़ा होता ही नहीं। And if there was no need for him to have that fight that he had. वो क्योंकि उसके साथ था और वो दोनों एक दूसरे के साथ सहमत नहीं थे, वो झगड़ा तो एक ना एक दिन होना ही था। Because he was with him and they were not in one mindedness, that is why they had that fight. आत्मिक आदमी शारीरिक आदमी के साथ कभी नहीं चल सकता। Like a spiritual man can never walk in the same manner with a worldly man. एक ना एक दिन तो अलग हो ही गए होंगे। One day or the other they'll be separated. और वहां पर उसने क्या किया, देखिए प्रभु इब्राहिम को प्रतिज्ञा देने में रुक गया। आप ध्यान से पढ़िए, फिर से पढ़िए उत्पत्ति 13 और 14। Let's read Genesis 13:14. 13:14 सिर्फ पहला हिस्सा पढ़िए। जब लूत अब्राम से अलग हो गया, जब लूत इब्राहिम से अलग हुआ तब प्रभु ने इब्राहिम से बात की, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सारी भूमि तुझे दे दूंगा। After Abraham had departed from Lot, then the Lord spoke to him that I'll give you all this land. प्रभु तब तक उससे ये बात नहीं कह पाया। The Lord couldn't say this until that moment. उस प्रतिज्ञा को, इस इमोशनल डिसीजन ने उस प्रतिज्ञा को इब्राहिम के जीवन में रोक दिया। That emotional decision had blocked this promise in Abraham's life. और तीसरा तो हम अच्छे से जानते हैं, सारा की बात मान के उसने इश्माइल पैदा कर दिया। And the third thing we know that as agreeing to Sarah, he gave birth to Ishmael. जिससे आज तक भयानक नुकसान हो रहा है। Because of whom to this day there is a terrible destruction. उससे भी उसको अलग प्रभु ने किया। And the Lord also had to separate him from that. कई बार विश्वासियों के जीवन में उनके परिवार उनके लिए सबसे बड़ी रुकावट बनते हैं। Many times in a believer's life, their families become the biggest hurdle in their life. क्योंकि हम भावनात्मक रूप से उनसे जुड़े होते हैं। Because we are emotionally bound with them. और कई विश्वासियों के आत्मिक दौड़ को उनके परिवार जनों ने रोक दिया।
And many believers' spiritual run has been stopped by their हाँ, family वो members. कहेंगे माँ बाप, कोई कहेगा हाँ संगति में मत जा, वहां क्या है, मेज में क्या रखा है, और वो कहेंगे हाँ जी ठीक है, हम रुक जाते हैं. Like their family would say that like, "Oh, don't go to the assembly, don't go to, like what is there in the table, don't go," and they accept like हाँ, okay. उनकी माँ आंसू बहाने लगेगी, तू हमारी बात नहीं मानता, हम तेरे तेरे सब कुछ तेरे लिए किया, अरे यार मेरी माँ इतनी दुखी हो रही है, मैं नहीं जाता संगति में. Their mother would start crying that we have done so much for you, like we've given up everything for you, and like they start to come into their mother's words. मैं ये नहीं कहता अपने परिवार की चिंता मत करो. I'm not saying that don't take care of your family. जो अपने परिवार की देखभाल नहीं करता वो अविश्वासी से भी गिरा हुआ है. Like whoever doesn't take care of his family, he's more fallen than a वो non-believer. बहुत ही गिरा हुआ आदमी है. He's a very fallen man. परिवार की, माँ बाप की देखभाल करना, उनका आदर करना जरूरी है, वचन के अनुसार जरूरी है. According to the word, it is must that you take care of your family. लेकिन परिवार आप पे हावी हो जाए, But your family shouldn't be too much on you. एक लाइन बनानी पड़ती है. Like you have to keep a line. हाँ, यहां तक मैं आपके बिल्कुल अधीन हूं, मैं अपनी पत्नी की बात है, मेरे बच्चों की बात है, मेरे माँ बाप की बात है, इसके आगे नहीं, बस. Like until this line, like I'm completely submissive to you. I agree to everything that you say, but after this, no. हाँ, यहाँ पर प्रभु की बात. And from this line on, it's only God's word. प्रभु का काम, प्रभु के लोग, प्रभु की संगति, प्रभु की मेज, ये मेरे लिए सबसे पहले है. God's work, God's people, God's table, and God's ministry is of the highest priority. बहुत से विश्वासी अपने माँ बाप के, पति पत्नी के, बच्चों के दबाव में आके बड़े बड़े गलत फैसले लेते हैं. Many believers have taken wrong decisions coming into the influence of their family, their wife, and their children. छोटी छोटी बातों में इमोशनल दबाव में आ जाते हैं. They come into emotional blackmail. 10 साल का बच्चा, पापा मुझे मोबाइल ले दो, मुझे स्मार्टफोन ले दो, सबके पास है, मेरे पास नहीं है, अरे यार चलो ले देता हूँ. A 10-year-old son comes and asks, "Father, Dad, buy me a smartphone. Everyone has," and then like, he starts crying and father accepts. आपका बच्चा आपसे ज्यादा स्मार्ट है स्मार्टफोन इस्तेमाल करने में. Your son is more smart than you in using a smartphone. और फिर वो सारा गंद देखेगा. And he'll look at all the dirt there is. और गंद देखकर गंद करने का मन करेगा और करेगा. And after looking at the dirt, he'll start to think of wanting to do तब आप that रोक dirt. नहीं पाओगे, तब आप रोक नहीं पाओगे. Then you will not be able to stop बहुत him. देर हो चुकी होगी. It would have been too late by then. मैं नहीं कहता, परिवार से जरूर प्यार करो, माँ बाप का आदर करना जरूरी है, लेकिन एक लाइन है. Like it is a must that you take care of your family and you love your family, but you have to draw a line. आखिर में इब्राहिम को प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने उस बहते हुए एक झरने से इब्राहिम के तीखे कोनों को मिटाकर उसको स्मूथ स्टोन बना दिया. And what did the Lord do to Abraham? Lord had to remove all the sharp edges on him in his life and make him smooth through the living stream. और अंत में एक और लगाव आया. And then at the end there came another bondage. प्रभु ने कहा, ये जो बेटा इज़ाक जिसे तू प्यार करता है, जो तेरा इकलौता बेटा है, इसको मेरे लिए बलिदान कर दे. And the Lord said that this your only son whom you love so much, sacrifice him for me. ये सबसे मुश्किल बात थी. This was the most difficult of all. लेकिन जैसे जैसे इब्राहिम संसार से अलग होता गया, ऐसे ऐसे प्रभु के पास आता गया. But the more Abraham got distant from the world, the closer he was getting to God. और इब्राहिम ने परमेश्वर से ऐसा प्यार किया कि उसने उसको अपना इकलौता बेटा दे दिया. And Abraham loved his God so much that he gave his only son. वो अपने जीवन की चरम सीमा में पहुंच गया. And he was in the pinnacle of his life. और तब प्रभु ने कहा, मैं तुझे आशीष पर आशीष दूंगा. And then the Lord said that I'll give blessings upon blessings to you. क्योंकि अब उसका परमेश्वर उसके उस तन मन शक्ति बुद्धि से अपने परमेश्वर से प्यार करने लगा था. Because by then he was loving his Lord with everything that he is. लूत को इब्राहिम ने बचाया. Lord saved Abraham. नहीं, इब्राहिम सेव्ड लॉट. Abraham saved Lot. उसको निकाल लाया. And he got him out. लूत ने क्या किया? What did Lot do? लूत फिर सोदोम में चला गया. But Lot again went into Sodom. प्रभु ने उसको गोल्डन अपॉर्चुनिटी, सुनहरा मौका दिया था, उसकी ताड़ना करके उसको निकाल लाया था.
The Lord gave him a golden opportunity. He chastened him and he got him out of it. पढ़े नीति वचन 26:11, Let's read Proverbs 26:11. 26:11. नीति वचन 26:11। यस भाई। जैसे कुत्ता अपनी छांट को चाटता है, वैसे मूर्ख अपनी मूर्खता को दोहराता है। हाँ, वो बेवकूफ आदमी कुत्ते जैसे चाटता है ना अपनी उल्टी को, वैसे ही वो फिर सदोम की उल्टी में लौट गया। The Lord, being a foolish man, like a dog returns to his vomit, he returned to Sodom. वो जानता है इब्राहिम मुझसे प्यार करता है, मेरे दुख सुख में मेरे साथ खड़ा, मुझे कभी धोखा नहीं देगा। He knew that like Abraham loves me, he's been with me in all my ups and downs, and he will never deceive me. ऐसे विश्वासी उन आत्मिक विश्वासियों के बारे में जानते हैं, ये हमसे प्यार करते हैं, हमें कभी धोखा नहीं देंगे, हमसे सच बोलेंगे, लेकिन हमारे दुख सुख में हमेशा हमारे साथ खड़े रहेंगे। And there are believers who know that the true believers, they'll never deceive us. They'll be with us in all walks of life, in all ups and downs. लेकिन उनका लालच, उनका ईगो, उनकी जलन बीच में आ जाती है। But their pride, their greed, and their ego comes in between. अगर मैं लौट गया तो मुझे झुकना पड़ेगा, Like if I return, then I'll have to bow my head. और अब दोबारा थोड़ी ऐसे होगा। I can't do that again. नहीं, मेरे साथ दोबारा ऐसे थोड़ी होगा। I'll not do this again. No, this will not happen to me again. ऐसा This will दोबारा not मेरे साथ नहीं। हाँ, अब वो दोबारा सदोम में लौट गया And then he returned to Sodom again. और फिर पूरी तरह बर्बाद हो गया। And then he was completely destroyed. अब यहाँ मेल्किसेदेक पे आते हैं। And then let's come back to Melchizedek. आप में से हिस्सा लेने से पहले इस बात को जल्दी से देख लेते हैं। Before we take part in the table, we look at it. जब इब्राहिम ने इतनी बड़ी जीत पाई, When Abraham had such a big victory, तो सदोम का राजा उसके पास आया। then the king of Sodom came to him. 14:21 उत्पत्ति 14:21 पढ़ती थी। Genesis 14:21. तब सदोम के राजा ने अब्राहम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख। हाँ, प्राण मुझे दे दे, सोल्स मुझे दे दे और सारा सामान तू ले ले। Like he said, like, give me the souls and you keep the goods. हाँ, शैतान की यही तो इच्छा है, तुम जो चाहते हो ले लो, बस प्राणों की चिंता मत करो, प्राणों को जाने दो। This is what the devil wants, that you take whatever you want but leave the souls to me. यही चाहता है विश्वासी के साथ, तू संसार में सब कुछ पाले, बस प्राणों की चिंता मत कर। Like that is what he wants, that you think of everything in the world and don't think of the souls. अगर कोई सारे संसार को पाले और प्राण की हानि उठाए तो क्या लाभ है? Like if anyone wins the entire world and loses his soul, what good out of it? अगर एक विश्वासी के पास सब कुछ हो लेकिन उसके अंदर आत्माओं के लिए कोई चिंता ना हो तो क्या लाभ है? If a believer has everything but he does not have any desire for the souls, then what is the point? प्रभु ने आपको यहाँ सफलता करियर के लिए नहीं रखा। The Lord did not keep you here for career and success. वो तो प्रभु चुटकी में दे सकता है आपको। The Lord can give you in a snap. वो तो प्रभु ने आपको यहाँ पर प्राणों के लिए रखा है कि आप उनको सुसमाचार दो। But the Lord had kept you here for the souls, that you give them gospel. यहाँ ऐसा आप, वहां तो सोने की सड़कें हैं आपके पास, आप तो सोना बैंक में रखते हो, वहां तो सड़कें सोने की बनी है स्वर्ग में। Here you put gold in bank, but there are roads made of gold. इतना कुछ है तो यहाँ क्यों रखा है? Like then there is so much there, then why do you want to have it here? शैतान हमारा बेवकूफ बनाता है। The devil makes a fool out of us. वो कैरियर, पैसा, चीजें, संसार, जैसे हम उन्हीं चीजों में खो जाते हैं। Like career, money, like things, and like all the joys of this world, we are तो lost. सोडोम के राजा ने उसको कहा, प्राण मुझे दे दे, सामान तू रख ले। The king of Sodom told him that give me lives and keep the goods. लेकिन इस सोडोम के राजा के आने से पहले सेलम का राजा उसके पास आ गया। But before this king of Sodom, king of Salem came to him. और उसने उससे क्या कहा? And what did he tell him? 19वीं आयत पढ़े। Let's read verse 19. जल्दी से 18 जल्दी से पढ़ दे 18। हाँ, तब शालेम का राजा मलिकिसेदेक जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाखमधु ले आया और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो और धन्य परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। ये उसको दर्शन दिया परमेश्वर के बारे में। He gave a vision about God. और जब सोदोम के राजा ने उससे कहा तो इब्राहिम ने 22वीं आयत पढ़े। 22वीं आयत। And after the king of Sodom spoke to him, what did Abraham say in verse 22?
अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, परमप्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, 23 हाँ, पढ़े। उसकी मैं ये शपथ खाता हूं कि जो कुछ तेरा है उसमें से ना तो मैं एक सूत और ना जूती का बंधन ना कोई और वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा ना कहने पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ। हाँ, उसी मेल्कीसेदेक ने जो वचन कहे थे वही वचन इब्राहिम ने दोहराए। Whatever Melchizedek had told him, Abraham recited those lines. जब उसके सामने परीक्षा आई, उसको प्रभु का वचन याद आया, मेरा प्रभु स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है, वो मेरी सारी जरूरतें पूरी करेगा, इससे मैं एक फीता भी नहीं लूंगा। When temptation came in front of him, he remembered that his God is the creator of heaven and earth, and he can give everything, and I'll not take even a penny from him. इब्राहिम ने बिल्कुल एग्जैक्ट वही शब्दों का इस्तेमाल किया। Abraham used the exact same words. कई लोगों को तो इस संदेश की बात ये भी नहीं, वो जो प्रार्थना करते हैं, जैसे कल भाई एक बात कह रहे थे, हम खेत की बात करते हैं, वो खलिहान की प्रार्थना करते हैं। Many people will not even remember after this message. Like yesterday, brother was saying that we were listening to the message of a farm, and someone will pray about graveyard. तो इस तरह मेज में मेल्कीसेदेक ने इब्राहिम को आने वाली बड़ी परीक्षा के लिए तैयार कर दिया। And in this way, Abraham was prepared for a great tribulation through the table. इस मेज में प्रभु को याद करें, जांचें। Like in this table, remember the Lord and examine yourself. पश्चाताप करें, repent, आने वाली परीक्षा के लिए तैयार हो जाए, and so that you may be prepared for the troubles to come. आइए हम और आप बड़ी दिल की ईमानदारी से इस मेज में हिस्सा लें। Come, let us take part in with all honesty of heart.